Hello, students. Welcome to your biology class. Today, shall we start a new chapter? The name is Molecular Basis of Inheritance. See, students, in last class where we discussed about the inheritance of before evolution, we discussed the chapter inheritance. Inheritance means transfer of character from parents to the offspring is known as inheritance, right? A character may be height, color, shape, size, whatever, those are the characters. Now there we come to know about the character are determined or controlled by genes, pair of genes, dominant genes, recessive genes, right? They control the inheritancy, they control our characters. Now here, behind the factor, behind the genes, you may find certain molecules are there in each and every cell. Suppose I will tell the unit of genetics is the gene. Gene is the unit of heredity, is it right? So where the gene is present? On chromosome. Where the chromosome is present? In the cells. So chromosome, cells, chromosomes, genes, cell, chromosome and gene. And ultimately when we look at the gene, because the gene is the structure and function unit of heredity, is it right? So when we look at the gene, where we find a molecule, and that molecule control the inheritancy. Hence the chapter is molecular basis of inheritancy, right? This is the one of the most important and hard chapter. Listen carefully and don't worry about its notes. What I'm showing this video, by the video only you take it down the notes. Okay, now let us continue this. Okay, now see students, this is an a introduction. Please listen carefully. Introduction it is. Now name the two type of nucleic acid found in the living organism. See, molecular basis of inheritancy, that molecule is called nucleic acid. मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंसी जो हम पढ़ रहे हैं वो मॉलिक्यूल कौन है बोले तो ये न्यूक्लिक एसिड ही वो मॉलिक्यूल है. सो नेम द टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म which control the inheritancy, and that nucleic acid is deoxyribonucleic acid DNA, then ribonucleic acid RNA. ठीक है. See, what act as a genetic material in most of the living organism. मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कौन सा ऐसा मटेरियल है जो जेनेटिक वो कौन सा ऐसा मटेरियल है जो जेनेटिक को कंट्रोल कर रहा है. यस, उसका नाम है डीएनए एज ए मॉलिक्यूल विच एज ए जेनेटिक मटेरियल. नेक्स्ट, इन वायरसेस what act as a genetic material other than DNA means RNA. मैक्सिमम एनिमल्स में, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन वायरस के पास डीएनए को छोड़कर आरएनए भी क्या है बोले तो एक जेनेटिक मटेरियल है. आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस. नाउ लिस्ट सम फंक्शंस ऑफ RNA, मैसेंजर कैटलिस्ट, ये उनके फंक्शंस हैं. तो ये आपको एज इट इज़ लिखना है, ये इंट्रोडक्शन पॉइंट. नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट. यस बच्चों, यहाँ देखिए, आपको नेक्स्ट हेडिंग बनानी है न्यूक्लिक एसिड. सी, न्यूक्लिक एसिड आर द माइक्रोमॉलिक्यूल्स. न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक माइक्रोमॉलिक्यूल्स है, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स.
जितने भी प्लांट और एनिमल लिविंग सेल्स है सारों के अंदर न्यूक्लिक एसिड आपको पाए जाती है. न्यूक्लिक एसिड विल फाउंड इन दी ऑल लिविंग सेल्स. नाउ फेंड्रिश Mixture was the first person isolated the nucleic acid. This is the scientist who found that nucleic acid from the pus cell, and he called it as nuclein. As it has acidic nature, वो जो न्यूक्लियस में जो एसिड पाई गई थी वो थोड़ा सा एसिडिक नेचर रहने की वजह से हेंस अल्टमैन कॉल्ड इट एज ए न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो वह दो किस्म की न्यूक्लिक एसिड है फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमने पढ़ा था. एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और दूसरा राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए. ठीक है, ये पेज भी आपको एज इट इज़ लिख देना है. नाउ लेट अस प्रोसीड दिस. सी यहाँ पे आपको जो हेडिंग दिख रही है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए. डीएनए के बारे में हम काफ़ी कुछ सुने हैं हमारे पिछले क्लासों में, पिछले प्रीवियस ईयर्स में. देखिए डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है. डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है. जेनेटिक यानी कि वो जो कि ट्रांसफ़र ऑफ द कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ाता है. फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं विच इज़ बाय जेनेटिक्स यानी कि डीएनए से. ठीक है, कैरीज कोड इन्फॉर्मेशन. ये डीएनए के पास कोड होते हैं, वो कोड इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन. वही कोड सिम्बॉल्स हमारे पेरेंट्स से हमारी बॉडी में आके सिग्नल्स देते हैं, उसी तरह हमारी बॉडी बनती है या फिर फंक्शन करने लगती है. ठीक है, नाउ इन यूकैरियोटिक सेल्स वहाँ दो टाइप के सेल है आप जानते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक. तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं. इट इज़ द चीफ कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम्स. यस, क्रोमोसोम किन चीन से बने हुआ है, क्रोमोसोम डीएनए से ही बने हुआ है. यूँ समझिए क्रोमोसोम डीएनए में ही है या डीएनए क्रोमोसोम में ही है. ठीक है, वो दो एक जैसे ही है. नाउ डीएनए आल्सो फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल. जैसे कि न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है. उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी एक सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर भी आप क्या पाया जा सकता है, वहाँ क्या मिल सकता है आपको, डीएनए. नेक्स्ट, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड. अब हम इसके बारे में खुलासा करेंगे क्या मतलब है ये राइबो न्यूक्लियोटाइड बोलकर आगे की क्लास में. तो डीएनए एक लॉन्ग बहुत सारे पॉलीमर जुड़ा हुआ एक लंबी सी चैन है जिसको कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है उसके पास कई सारे. ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ द डीएनए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट्स. डीएनए का लेंथ डिपेंड करता है कितने सारे इसके पास न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है. जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज में ये इतना है, कितना 174 टू 5386 न्यूक्लियोटाइड्स. बैक्टीरियोफेज लैम्बडा. ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, इसमें इतने मौजूद हैं. देन ह्यूमन में 3.3 इंटू 10⁻⁹. ये बीपी का मतलब होता है बेस पेयर्स. बीपी का मतलब होता है बेस पेयर्स. ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आप इतना ही समझ लीजिए, इतना ही लिख लीजिए. कल हम अगली क्लास में दूसरी टॉपिक देखेंगे. ठीक है, थैंक यू.